Okay, so hello everyone, welcome back to my YouTube channel Net Clarity, and here we are with one another success story of one of my student Diksha Manglani, who has cleared net with flying colors with 98.12 percentile. So चलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, we'll straight forward hear it out from Diksha. So we are here live on the Zoom call. So first of all, welcome Diksha. And first of all, see, the viewers don't know you. So I would like you to introduce yourself first. What is your name, background, and everything? How did you met me? Like everything. So just introduce yourself. Hello, good evening, everyone. My name is Deeksha Manglani. I've cleared my NET exam for the post of assistant professor. Uh, the exam was held on 3rd January 2026, and I've completed my graduation from Sophia College, Ajmer, and I'm currently doing my master's from MDSU. So, मैं जब शायद मैंने ग्रेजुएशन हाँ जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी तो तब मैंने मैम क्योंकि मैं पढ़ चुकी थी सोफिया में मैम ने मुझे पढ़ाया था इकोनॉमिक्स। तो मैं उनसे पढ़ चुकी थी तो मैंने कंसल्टेशन मतलब गाइडेंस के लिए पूछा था उनसे कि मैम मैं Okay, क्या so करूं आगे। okay, so sorry to cut over here, Diksha. Like Diksha Manglani was my student actually in college. I used to teach in an institution, which is a very prestigious institution of Rajasthan, which is Sophia Girls College Ajmer. So I had taught her over there, and from there she know me as an assistant professor. Yes, continue. यस मैम, तो मैंने उस समय मैंने मैम से कंसल्टेशन ली थी कि मैम मैं क्या करूं आगे, मैं कंफ्यूज थी। तो उस समय जब जब मैंने पूछा था तो तब ऐप इतना डेवलपमेंट प्रोसेस में था। तो तब उन्होंने मुझे गाइडेंस दी थी। और फिर कुछ समय बाद मुझे पता पड़ा था कि मैम एक्चुअली 5 मंथ का स्ट्रैटेजी वाइज पूरा जो कोर्स है वो प्रोवाइड करेंगी। तो मैंने कहा कि ठीक है, चलो मैं एक बार, क्योंकि मैं पढ़ चुकी थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं लेके देखती हूँ और फिर मैंने एनरोल किया इस कोर्स के लिए। Okay, so she had actually, we had a one-on-one call, a strategy discussion session. She was preparing, she was planning to prepare for the exam, and I had like explained her that I've come up with the program called 5 month UGC Net Commerce Mastery Program, and I had explained her everything, and that's how she just enrolled into that mastery course. Okay, so Diksha, I want to know that before joining that, the 5 month UGC Net Commerce Mastery Program of both paper one and paper two, what were the challenges that you were facing in paper one and paper two? Like this was her like what were the challenges? What were the things in mind? क्या ऐसा चल रहा था दिमाग में? मैम, ग्रेजुएशन के बाद एक्चुअली क्लैरिटी नहीं थी कि करना क्या है, किस डायरेक्शन में जाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे क्लैरिटी मिली कि मतलब चलो इस डायरेक्शन में जाना है, मुझे नेट परस्यू करना है क्योंकि मुझे टीचिंग की फील्ड में जाना था। तो मुझे पता पड़ा कि ये एक गेटवे है। तो फर्स्ट तो ये, और मुझे ऐसे स्पेसिफिकली मैंने सही बताऊं तो सिलेबस भी इतना देखा नहीं था ढंग से पूरा एज सच। तो जब मैं आई कोर्स में तो तब मुझे पता पड़ा इतना वाइड सिलेबस है जिसमें पेपर वन पेपर टू, और मैंने कभी एज सच एग्जाम के लिए भी ऐसे अपेयर नहीं किया था। तो Okay. एकदम बिगिनर ही थी मैं, मुझे आइडिया नहीं था इतना, तो कंफ्यूज थी थोड़ी। Okay. So, what made you decide कि यार यही प्रोग्राम परचेज करना है या मैम से ही पढ़ना है? बिकॉज ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, द वर्ल्ड इज वेरी कॉम्पिटिटिव. So what made you to decide to join, or you want to learn from me as a mentor, or you ready to accept me as a mentor instead of joining somewhere else? So what made you decide that? Very honest answer, very genuine one. मैम जब मैं सोफिया कॉलेज में थी तो जब मैं उधर आई थी तो मुझे इकोनॉमिक्स में स्टार्टिंग से ही बहुत इंटरेस्ट रहा है। तो तब मैंने 11th 12th में भी पढ़ी थी इकोनॉमिक्स, पर मतलब मेरे कंसेप्ट उतने क्लियर नहीं थे। डिमांड वगैरह वो मैंने सिर्फ याद की थी। और जब मैंने उधर पढ़ी कॉलेज में तो मुझे एक्चुअली चीज़ों का कैसे मार्केट्स होते हैं वगैरह तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिली थी। तो उस बेस पे मतलब मुझे पता था कि कंसेप्ट तो क्लियर होंगे ही, इतनी तो मुझे गारंटी थी। ओके, तो तो फिर आपने मैं कॉलेज में किससे पढ़ी थी इकोनॉमिक्स? आपसे पढ़ी थी। ओके, मैंने ही पढ़ाया था. सो दीक्षा's बैच वाज, आई गेस. इकोनॉमिक्स भी पढ़ी थी और बैंकिंग भी पढ़ी थी अच्छे से। यस, ओके.
ओके, सो दैट मेड यू डिसाइड कि मैम से ही पढ़ना है। यस मैम, फिर तो मुझे था कि मैम पूजा से ही पढ़ना है। नेट भी मैम पूजा से ही पढ़ना है। यस मैम, क्योंकि वो मेन सब्जेक्ट्स तो आप करा ही देते, तो इतनी तो गारंटी थी। ओके, सो टीचर्स तो और भी थे, प्रोग्राम्स है, बिग बिग प्लेटफॉर्म्स आउट देयर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ा रहे थे, तो ऐसा लगता है कि हाँ कि फेमिलियर है मैम से इसलिए पढ़ना है, या एक ट्रस्ट है, लाइक एक वो होता है ना कि दिल से एक हाँ निकलता है, वो क्या रीजन था? आई वांट टू नो दैट इनसाइड फीलिंग। मैम फेमिलियरिटी भी थी, पर एक होता है ना जैसे एज अ स्टूडेंट जब होता है तो उसको लगता है कि मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं ना, तो मेरे को एकदम एप्ट आंसर मिले मेरी लैंग्वेज में, जैसे मैं समझ पाऊं। तो वो जैसे एकदम पॉइंट आंसर देना कि अच्छा ऐसे, और नहीं समझ आया तो उसको अलग वे से, तो वो मुझे डाउट सॉल्विंग बहुत अच्छे से होती है मेरी। तो वो है। दैट इज द बेनिफिट ऑफ लाइव क्लासेस। यस। तो मतलब लाइव क्लासेस में आप अपने आप को अनम्यूट कर पाके क्वेश्चंस कर लेते थे। यस मैम, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि बाकी एप्स पे ऐसा नहीं होता। आप आए, ऑनलाइन अटेंड किया और हो गया। पर यहाँ पे मतलब मुझे खुद को भी याद है, मैं क्लासेस में पूछती थी अच्छे से, तो मेरे डाउट्स उसी क्लास में सॉल्व हो जाते थे। So I would like to mention over here, as Diksha said, that I don't believe that, that when students are coming to the session or coming to the class, they just camera shut off hai, mic off hai, and then bas ek, it's a one-way communication, which many platforms offer. But I, as a person, as a teacher, I love to be very interactive. So I always used to ask students to unmute themselves and ask the questions if they have any, or ask any doubt right in between. Yeah, I'll just, the strategy is like that. I just stop the session, that if there are any doubts, do ask. If there are any doubts, that is my teaching pattern. So I can't be like, just a one way communication. So that was one advantage. It was not given only to Diksha, but all the other batchmates which were there. Okay, am I correct, Diksha? Like it was provided to everyone or just to यस you? मैम। यस मैम, सबको था। सबको था। चलिए, so what do you think that which subject area was more improved after you joined, after you have, joined the program, the 5 months mastery program of UGC NET? मैम मेरा एस्पेक्ट मतलब इकोनॉमिक्स, तो जैसे मैंने बताया कि मेरा तो उस पे मेन ट्रस्ट था, मुझे पता था वो तो हो ही जाएगी। इसके अलावा जैसे जब स्टार्टिंग की हुई थी तो हमने ना हार्ड टॉपिक्स उठाए थे, जैसे थ्योरीज, इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज, जो कि एंड में समझना पॉसिबल नहीं होता, मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज या जो भी है, लिमिटेशन वगैरह, तो वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो हमने पहले ही मेन टॉपिक्स कवर किए थे, थ्योरीज हो गई, बिजनेस फाइनेंस, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी। तो वो चीज बहुत मैटर करती है। क्लैरिटी आती है कि आपने पहले हार्ड टॉपिक पकड़ लिया तो फिर आप इजी कर लेते हैं एंड में। Like business environment, that theory of absolute यस मैम। advantage, theory of relative advantages, and also paper one भी हमने statistics, research यस aptitude, मैम। यस मैम। तो ये हायर logical हायर एजुकेशन हमने करी थी। logical reasoning, यस मैम। सो टफ टॉपिक्स हमने जो है उसके पहले करे थे। वन थिंग आई वुड लाइक टू आस्क दैट, सो व्हाट डू यू थिंक, किस यूनिट में ऐसा लगता था यार पहले बहुत वीक है, या पहले पता ही नहीं है इसके बारे में, या पहले टफ लगता था बट आफ्टर एनरोलिंग इजी लगा? कैसा, कौन सा वो यूनिट था, या कौन सा ऐसा टॉपिक था? इट कुड बी एनीथिंग फ्रॉम पेपर वन, फ्रॉम पेपर टू, कुछ भी हो सकता है, लॉजिकल रीजनिंग, एनीथिंग, इट कुड बी लॉजिकल, DI, people development environment, or anything from paper 2 as commerce. मैम मेरे अकॉर्डिंग पेपर वन में तो जैसे बाकी तो ठीक है, मैथ्स वगैरह करते हैं, ऑफ कोर्स उसका एडवांस था, पर लॉजिकल रीजनिंग जैसे फैलेसी वगैरह ये तो मैंने कभी सुनी ही नहीं थी। तो मतलब मेरे लिए एकदम नया था। और उसको एक एक चीज को मतलब आप कनेक्ट कर पाते हो, समझ समझ के, एक एक फैलेसी, फॉर्मल इनफॉर्मल। तो वो बहुत अच्छा था। इनफैक्ट हायर एजुकेशन में भी जैसे मतलब जैसे होता है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह, उसको उतना मतलब एप्ट होता है कि आपको बहुत डीप भी नहीं जाना है, और आपको उतना पढ़ना है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो वो चीज रहती है पेपर वन में तो ये। और पेपर टू में आई गेस स्टैट्स और इकोनॉमिक्स, बिजनेस फाइनेंस वगैरह, तो ये सभी मतलब अच्छे से कवर्ड थे। अच्छा, एंड जैसे जो PYQs प्रोग्राम में, अगर आपने जैसे PYQs और बहुत सारे MCQs सॉल्व करने से, हाउ डिड दैट हेल्प इन
रियल एग्जामिनेशन, पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज सॉल्व करने का आपको क्या लगा कि क्या एडवांटेज मिला है रियल एग्जामिनेशन में? हम लाइक कंसेप्ट जैसे कर लेते हैं तो उसके बाद एक तो अपनी जितनी भी क्लासेस होती थी उसमें एंड में ही मतलब एक शायद 20 मिनट्स का 30 मिनट्स का अपना पीवाईक्यू सेशन होता था। पर उसमें एक बेसिक जो उससे क्लास से रिलेटेड वाले होते थे, तो उससे क्लैरिटी मिलती थी, आपको पता पड़ता है कि अभी अभी आप पढ़ के आए हो तो आप उसको कितना अप्लाई कर पा रहे हो। और फिर कॉन्सेप्ट ओवरऑल, एप्लीकेशन में हेल्प हाँ, और फिर इंस्टेंटली। ओवरऑल जैसे बीच बीच में कभी टेस्ट होते थे या फिर मैराथन एंड वाले, वो बहुत यूजफुल रहे। तो ओवरऑल मतलब आप एग्जाम प्रेशर समझ पाते हो कि ऐसे फेस करना है, ऐसा टाइप का आएगा क्वेश्चन, इसको ऐसे अप्लाई करना है। तो एक तो आइडिया वो मिल चीज, जाता है। यस मैम। एंड टेल मी दैट, जब वो देखा दैट यू सॉ द रिजल्ट 98 परसेंटाइल और क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी, तो वो जब देखा, व्हाट वाज द रिएक्शन? वो रिएक्शन क्या था माइंड में? मैम आई वाज रियली हैप्पी अबाउट इट। जैसे मैंने देखा तो सब पेरेंट्स वगैरह भी बहुत खुश थे। एंड फिर जैसे ही मतलब सेलिब्रेशन घर पे ओवर हुआ तो फिर मैंने कॉल किया एकदम से कि मैम मेरा हो गया फाइनली। एक बहुत प्राउड मोमेंट है। So that the और inner आई feeling फील was like, ब्लेस्ड। chalo. And one more thing I'd like to ask, that I want to know about your transformational journey, because I promise transformation that, through my program or through my teaching and everything, because concepts सब पढ़ा देंगे and everything. So I want to know from you that how did you transform? Did you saw any transformation in yourself, any change in yourself that you have transformed um, from the day you joined and till today? I'm asking. मैम एक तो ट्रांसफॉर्मेशन मेरे में ये था क्योंकि मैंने कभी एग्जाम ऐसे कॉम्पिटिटिव वाला फेस नहीं किया, तो मेरे को एक हैबिट पड़ी। मैंने 2 बार जैसे दिया तो मेरे को एक उसको हैंडल करना आया कि एकदम इमीडिएट आप कैसे कर पाते हो, तो एग्जाम प्रेशर हैंडल करना आया, Okay. टाइमली आंसर करना। और एक था कि जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मेरे को मतलब मेरा थ्योरी एस्पेक्ट स्ट्रांग है ज्यादा, तो मैं स्टार्टिंग में सोचती हूँ कि थ्योरी पे मैं ज्यादा फोकस करूँ, जो कि ठीक है, पर मतलब इसके बाद मतलब टुवर्ड्स द एंड तक मेरे को ऐसे था कि नहीं, प्रैक्टिकल पे भी अच्छे से कमांड करनी चाहिए, स्टैट्स रिसर्च, तो वो और इम्प्रूव हुआ मेरा, प्रैक्टिकल पोर्शन और इम्प्रूव हुआ। ओके, चलो, ये तो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन हुआ, बट एज अ पर्सन कुछ लाइफ लेसन्स भी हम शेयर करते थे, मोटिवेशन एंड ऑल ऑफ दैट। सो एज अ पर्सन दीक्षा, क्या ट्रांसफॉर्मेशन फील किया अपार्ट फ्रॉम स्टडीज? मैम आई गेस जब हम टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह पढ़ रहे थे तो एक जैसे एक तो थ्योरी होती है कि टीचर को ऐसा होना चाहिए, पर उस समय एथिक्स की ऐसा होना चाहिए कि जैसे बच्चा पूछ रहा है तो उसको पॉजिटिवली मोटिवेट करना, कभी कभार नेगेटिवली भी, कि उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आए, तो आप उस पूरे प्रोसेस को इस तरह से एक्सपीरियंस कर पा रहे हो कि ऐसे बनना चाहिए, तो मे बी वो। ओके, सो मतलब एक आइडियल एक और दिमाग में। डिसिप्लिन, यस मैम, कि ऐसे बनना है तो आप उस अकॉर्डिंग कर पाते हो, और ऑफ कोर्स कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन भी आता है जब आप पढ़ रहे हो उतने टाइम। ऑफ कोर्स, तो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन सीखा आपने। यस मैम। I personally feel, this is my personal, that there are only two things that you need to be successful. Or actually three things. What I really feel is, first is discipline, consistent hard work, and third is humility. मुझे ऐसा लगता है टू बी सक्सेसफुल इन एनी फील्ड, यही तीन चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक डिसिप्लिन होना चाहिए, रेगुलरली आप अपने गोल पर काम करते रहें, कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करें, एंड अब वो डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी को लोग बहुत अलग अलग नामों से जान सकते हैं, उस देर आर सो मेनी डिफरेंट नेम्स फॉर दैट, एंड ह्यूमिलिटी इन एनी फील्ड, आई फील इट। सो ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि और आपको भी यही लगता होगा दैट डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट हार्डवर्क ने ही आपको वो जो सक्सेस है वो दिया है। यस मैम, एब्सोल्युटली। And one thing I'd like to, like, I want you to, like, what advice you would give to the people who are right now preparing for the UGC NET examination for paper 1, and paper 2 could be any, yours papers was commerce, since I am from commerce background, so I taught commerce. So like aspirants जो आपको सुन रहे हैं या कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, तो what advice you would like to give to them एज अ वेरी वेरी जनरल एंड फ्रॉम द हार्ट, वेरी ऑनेस्ट, जो, क्योंकि क्या होता है ना कि बिकॉज यू हैव बिन थ्रू दैट जर्नी,
आप उस जर्नी से निकल चुके हैं. यू नो द हार्डशिप्स, यू नो द स्ट्रगल्स, यू नो द थिंग्स, हाउ टफ इट इज. बिकॉज ऑफ कोर्स डे बाय डे एग्जाम का लेवल इतना टफ होता जा रहा है. एंड सो वेरी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग दिस एग्जाम है, वो परसेंटेज गिरता ही जा रहा है, राइट? तो क्या आप क्या कहना चाहेंगे? मैम मुझे ऐसा लगता है कि एक तो जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है ना पेपर वन का, कि जैसे डीआई उसको थोड़ा पहले करें, मतलब एग्जाम के एंड में नहीं, एक मंथ पहले नहीं, उससे थोड़ा पहले करें तो हेल्पफुल होती है। जैसे हम लोग भी जैसे करते थे, तो आपने यूट्यूब पे भी काफी सेशंस डाले थे, तो मेरा वो वाला डीआई वाला पोर्शन स्ट्रांग हो गया था उससे, मतलब उन वीडियोस से भी काफी क्लैरिटी मिली थी। फिर इसके अलावा मुझे लगता है कि पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू मतलब जान है इसका, अगर आपने पूरा कंसेप्ट पढ़ लिया और अगर आपको पीवाईक्यू में अप्लाई नहीं करने आ रही उस नॉलेज को, तो मतलब दिक्कत जाएगी। तो पीवाईक्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट 2 मंथ्स पहले तो होना चाहिए। तो ये दो चीजें। So concept clarity and concept application with the help of PYQs. Chaliye. So thank you so much, Diksha, for talking to us. And one last question: the feedback from for me as a mentor, because my mentor always says, because of course, um, I have also, learned from my teachers, my mentors, my gurus, and they always say that a coach always succeed when their student succeed. So I succeeded today because my student got the success. So any feedback for me, or how was your journey? Because people invest their hard earned money, and people, and more than money, I think people keep trust in someone as a mentor. So I would like you to say a few lines for that. I feel people should join this course because it is really helpful, and I feel that sometimes it might be hard, like for me it was like कि स्टैट्स कंप्लीट कर लो, वो जो एक प्रेशर था उसने मुझे बहुत मदद करी कि एंड में कि नहीं होना चाहिए, होना एक अकाउंटेबिलिटी होती है ना, कि आपको पता है कि आपको बोलना है, कि नहीं आपको जवाब देना है कि मैम हो गया, एंड तक हाथ पकड़े रहना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि मतलब ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाती है कि ऐसे करना है, पेपर वन को ऐसे करना है, पेपर टू को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता पड़ जाते हैं कि इस चीज में इतना फोकस करना है। तो मुझे लगता है कि ज्वाइन करना चाहिए, काफी हेल्पफुल है। Chaliye. Thank you, Diksha. Thank you so much. And thank you so much for putting your trust into me as a mentor. And specifically, I had left my job. After 5 years being an assistant यस मैम। professor, I had left it from there. And after that, you had joined. So, because at that time, I was accountable to my dean or principal or whatever. But after joining my own, thing and all of that, I was not accountable, but I was accountable to myself only. So thank you so much for keeping your trust into Net Clarity and into me. And once again, a big congratulations to you थैंक for यू सो being मच मैम। for securing 98 percentile and थैंक qualifying यू सो net मच फॉर with the. बिलीविंग इन। Thank you so much for believing in me as well, and believing in the platform. And once again, a big congratulations to you, and hope you make future. Who hope you make your parents more proud in future. And I hope you become a better assistant professor, a good assistant professor who will help the students when they are struggling, to clear the examination, or when they are struggling in their lives, and when they need the motivation, when they need that conceptual clarity. And hopefully, you will become that. So, thank you. Thank you so much. थैंक यू मैम।